Hello students, welcome to your PDF. I am Jitendra Tyagi and in today's lecture I am going to discuss 20 important quantitative aptitude questions for your HPCL exam which is coming soon. Okay, these 20 questions have been taken from different topics, so these are mixed type of questions, not from one particular topic. Okay, so all these questions will definitely help you during your exam because you will get exposure of different kind of questions. So now what you have to do, you have to solve all the questions with me here, right? क्वेश्चन को रीड करके आपको मेरे साथ में सोल्व करने का ट्राई करना है एंड अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई दिस. क्वेश्चन नंबर 1 को सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे अपने आप. Okay, so now let me explain you the solution of this question. Actually this question is based on one important rule that is known as componendo and dividendo rule. Okay, what is that important rule? If we have a upon b equal to c upon d, suppose these two ratios are equal, so what is componendo and dividendo rule? From this equation we can write a plus b, okay, divided by a minus b equal to c plus d divided by c minus d. So to write this equation from this equation is known as applying componendo and dividendo rule, right? So here we have this one equation and we can apply componendo and dividendo rule to get the value of x. Similarly here also we can apply this rule and we can get y. Both can be obtained in terms of a and b, and then we can put these values here to evaluate this. Okay, so let us try. First of all, from this equation we can write x plus 1 plus x minus 1 upon x plus 1 or minus of this quantity, so minus x or minus plus 1 equal to a plus b upon a minus b. 1 and 1 are cancelled, here x and x are cancelled, so we get 2x upon 2, so means we get x equal to a plus b upon a minus b. So we have obtained value of x in terms of a and b. Now similarly we can apply componendo dividendo rule here and we can get y in terms of a and b. So let us apply here also. So we can write 1 minus y plus 1 plus y upon 1 minus y or minus 1 or minus y equal to b plus a divided by b minus a. Okay, now this y and y are cancelled, ये दोनों को cancel कर सकते हैं y को y से. This 1 and 1 are cancelled, so we get 2 upon minus 2y equal to b plus a upon b minus a. And from this equation 2 and 2 are cancelled, we can write y equal to a minus b upon a plus b. So now we have obtained both x and y in terms of a and b. Clear? Now come to the final quantity, this one. We have to compute this x minus y upon 1 plus x. So just put the values of x and y in this quantity. So x means a plus b upon a minus b, this is x, minus y, this y is a minus b upon a plus b, divided by this quantity divided by 1 plus xy, so 1 plus a plus b upon a minus b, this is x, into y, this one is y, right? So a minus b upon a plus b.
Okay, so equal to, now we can take LCM as the product of a minus b and a plus b. So this LCM a minus b into a plus b, and this numerator become a plus b whole square minus this become a minus b whole square. Okay, and then this quantity divided by, now the product of these two, a minus b into a plus b, can be multiplied with 1 to take the LCM here. Okay, so this become a square minus b square, or plus this also is a square minus b square, because we have a plus b, a minus b. Okay, or we can write 2 here, we can write just 2. So what we get, we get, इसको हम 2 भी लिख सकते हैं या हमने ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है, अपॉन में ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ओके, सो इक्वल टू व्हाट, नाउ दीज टू कैन बी कैंसिल्ड, इसको दोनों को कैंसिल कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस दिस, सो वी विल गेट 4ab अपॉन this become 2a square minus 2b square, taking 2 common, so a square minus b square, so equal to 2ab upon a square minus b square, right? This will be this answer, a option, 2ab upon a square minus b square. आप यहाँ पे इसको सीधा 1 भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है. उस केस में फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो लास्ट में आ जाएगा साथ में, दोनों तरीके से कर सकते हैं. So A is the right answer, and this component and dividend rule is important, so you have to remember this. Now we have second question also written here, so now try second question. Okay, if 2x plus 3y ratio 3x plus 5y is equal to 18 ratio 29, then what will be x ratio y? So now I am deleting this solution. I hope all of you can do it at yourself now. Mainly आपको हिंट लेना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, ठीक है, और क्या आंसर आएगा फाइनली. So come to the second number question. We have 2x plus 3y upon, okay, रेशियो को लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 3x plus 5y or equal to 18/29. Okay, we can cross multiply both sides. So this 58x plus 87y equal to 54x plus 90y. Okay, now 58 minus 54 means 4x or equal to 90 minus 87 means 3y. Okay, so x upon y is just 3/4, so x ratio y is 3/4, so C is the right answer. Okay, 3/4, 3 ratio 4. And these two questions are from ESC 2021 paper. Okay, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे 21 में जो भी रिसेंटली इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर हुआ है उसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड सेक्शन में जो क्वेश्चंस आए हैं वहाँ से लिए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमने अलग से ऐड किए हैं, तो वो सभी को आपको सोल्व करना है, राइट. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3. टाइम एंड वर्क इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक. सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम ESC 2021 पेपर, and you can see that if you know the basic concept you can easily solve this. So in our previous concept through questions series we have discussed such questions many times, right? टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया है, वहाँ पे सारे कंसेप्ट भी हमने डिस्कस किए हैं. So you can use the concept and you can easily solve. Let me explain you the answer of the question number 3. So in how many days will A alone finish the work, right? So let A alone will finish the work in
x डेज। ठीक है, ये लाइन अभी तो मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती ना, एग्जाम में सोल्व करोगे तो माइंड में रख लिया कि भाई ए मान लिया x डेज में कंप्लीट करेगा वर्क को। यहां पे तो मुझे एक्सप्लेन करना है तो लिखना पड़ेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है ना। नाउ इन वन डे, अगर x डेज में वन वर्क कंप्लीट कर सकता है ए, सो इन वन डे वर्क डन बाई ए इज इक्वल टू हाउ मच, 1/x। ओके, नेटवर्क को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और वो वन वर्क x डेज में हो सकता है, तो वन डे में कितना होगा, 1/x वर्क होगा। राइट। नाउ a इज ट्वाइस एज गुड एज b। ओके, a इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज b। सो a का एफिशिएंसी जो है वो b से डबल है, मतलब a जितना काम करता है वो b का डबल करता है। सो b का वन डे वर्क कितना होगा, इन वन डे वर्क डन बाई b is equal to half of the work done by a, so 1/2x. Right. Now they both finish piece of work in 18 days. वो दोनों मिलके काम करते हैं और उसको 18 डेज में फिनिश कर देते हैं। तो 18 डेज में ए ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाई ए इन 18 डेज 18/x प्लस, और 18 डेज में बी ने कितना वर्क किया, 18/2x। ओके, और इक्वल टू टोटल वर्क डन इज 1। पूरा काम कंप्लीट हो गया तो 1 वर्क हो गया टोटल ये। सो 18/x प्लस 9/x इक्वल टू 1, सो 27 इज इक्वल टू x। सो आवर आंसर इज 27। ओके, 27 days में A alone can finish the work. So here C is the right answer. Now come to the question number 4. So this is from sequences and series. Okay, both questions are from ESC paper, and in HPCL also you may get such questions, right? सेम लेवल के क्वेश्चंस एचपीसीएल में आपको मिलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। सम ऑफ द सीरीज। क्लास लेक्चर में हमने सीक्वेंसेस एंड सीरीज को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और डिफरेंट तरीके की जो सीरीज हैं उनके सम कैसे कंप्यूट करते हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि सभी लोग इसको कर सकते हैं सॉल्व। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एंड यू कैन मैच योर आंसर विद माई आंसर। ओके, जल्दी से आंसर आप लोग निकालने की ट्राई करें। Now I am deleting this solution. So come to the question number 4. Okay, sum of the series. So we can see that this series can be written as 2 into 1, right, whole square, plus 2 into 2 whole square, plus 2 into 3 whole square, okay, plus dot 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 2 into 10 whole square, right। इस तरीके से लिख सकते हैं सीरीज को हम। अब ये क्या है, फर्स्ट इवन जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर्स का सम हमें निकालना है एक्चुअली। सो इन सच केसेस वी कैलकुलेट द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज एक्चुअली। ओके, सो व्हाट इज द जनरल टर्म? जनरल टर्म इज 2r, राइट। जनरल टर्म इज 2r, tr इक्वल टू 2r एंड इट्स स्क्वायर। उसके बाद इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, r को 1 लेंगे तो 2 into 1 होल स्क्वायर, r को 2 लेंगे तो t2 इक्वल टू 2 into 2 होल स्क्वायर। सो tr इक्वल टू 2r होल स्क्वायर, जिसको हम इक्वल टू 4r स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये जनरल टर्म होगी इसकी, आर्थ टर्म या जनरल टर्म, राइट। नाउ वी कैन सी दैट जनरल टर्म इज जस्ट लाइक ए पोलिनोमियल। अगर जनरल टर्म r के टर्म्स में पोलिनोमियल आता है एंड आप उसके n टर्म्स का, उस सीरीज के n टर्म का सम निकालना चाहते हैं, देन सिंपल कंसेप्ट इज Sn इज इक्वल टू समीशन ऑफ tr वेयर r इक्वल टू 1 to n। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इस पे हम समीशन का साइन लगा देते हैं। ओके, सो इक्वल टू समीशन ऑफ 4r स्क्वायर वेयर r इक्वल टू 1 to what, कहां तक वेरी करेगा, लास्ट में r इक्वल टू 10 होगा पे। ठीक है, क्योंकि 20 है ना, तो 20 का मतलब 2 into 10, सो r इज इक्वल टू 10। क्लियर। अब पहले क्या करेंगे, हम इसको n के टर्म्स में निकाल लेते हैं, बाद में इसको 10 कर देंगे, राइट।
उससे हमें जल्दी आंसर मिल जाएगा। सो आप इसको 10 की जगह आपको याद रखना है कि टोटल 10 टर्म्स है, बट n के टर्म्स में आंसर पहले निकालो। नाउ दिस इज ए सीरीज सम, ओके। 4 को बाहर निकाल सकते हैं, सो 4 इंटू समीशन ऑफ आर स्क्वायर और r इक्वल टू 1 to n। अब ये तो एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला होता है, समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n का फॉर्मूला, समीशन ऑफ r स्क्वायर, समीशन ऑफ r क्यूब, ये तीनों तो आपको हमेशा याद रखने हैं, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। सो कितना होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम 4 इंटू ये हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ओके। अब n को कितना लेना था हमें यहाँ पे 10, क्योंकि 10 टर्म का सम निकालना है, टोटल टर्म्स यहाँ पे 10 होंगी इसमें। सो 2y3 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21, ये हमें कंप्यूट करना है। 3 से कैंसिल करेंगे 7 टाइम्स, राइट। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 और इंटू 77, 1540। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस बी विल बी द राइट आंसर, ये वाला, ठीक है। अब ये जो मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया है, इस कंसेप्ट को आपको रिकॉल करके हमेशा रखना है कि अगर हमें कोई भी जनरल टर्म दिया हुआ है आर के टर्म्स में टी आर, और हम उस सीरीज का सम निकालना चाहते हैं एन टर्म्स का, सो वी हैव टू अप्लाई समीशन सिंबल आर इक्वल टू 1 से n, ओके। और वो 3 फॉर्मूले समीशन ऑफ आर स्क्वायर, समीशन ऑफ आर क्यूब, हमेशा आपको याद रखना है, क्लियर। So now we have solved these 4 questions. Now come to the next 5th question. Question number 5. And these two are also from the ESC paper 2021. Okay. अब आप देख सकते हैं कि ESC में अगर क्वेश्चंस का लेवल ये है तो डेफिनेटली HPCL में, PSUs में क्वेश्चन का लेवल नॉर्मली होता है, बिकॉज टाइम कम होता है वहाँ पे, तो उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आप उनको सोल्व कर सकते हैं इजीली। सो इन क्वेश्चन नंबर 5 दे आर डिफाइनिंग वन ऑपरेशन A क्रॉस B। A क्रॉस B का मतलब बोल रहे हैं कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। ये सिंबल है क्रॉस वाला, इसका मीनिंग है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये मीनिंग दिया हुआ है। सो आपको ये क्वांटिटी कंप्यूट करनी है। सो इसमें पहले 4 क्रॉस 3 अगर हम कंप्यूट करेंगे, सो आपको इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 25, ये 25 हो जाएगा। नाउ 5 क्रॉस दिस 25, 5 क्रॉस 25, सो इक्वल टू 5 का स्क्वायर और प्लस 25 का स्क्वायर, और इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, सो इक्वल टू 650, सिंपल, ओके। सो सी विल बी द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6। सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। ये एक तरीके का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है जो ESC में 2021 में पूछा है। सिंपल लेवल है क्वेश्चन का, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं पढ़ के। अपना अपना आंसर सभी लोग जल्दी से निकालें, अपने माइंड में रखें और फिर मेरे आंसर से मैच कराएंगे, ओके। मैरी इंट्रोड्यूसेस जैक, ओके। तो यहाँ पे एक मैरी है, वो किसका इंट्रोडक्शन दे रही है, जैक का। जैक के बारे में बता रही है मैरी, दैट जैक एज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। तो मैरी के फादर्स, मतलब मैरी के फादर की वाइफ कौन होगी, मदर होगी, किसकी, मैरीज मदर होगी, ठीक है, फादर की वाइफ। और उसकी ओनली डॉटर कौन होगी, एक ही डॉटर, मतलब वो मैरी खुद है, ये डॉटर हो गई, और ये उसका सन है, तो ये मैरी का क्या हुआ, जैक, सन हुआ, सिंपल। सो बी आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो मैरी बोलती है जैक के बारे में, ठीक है, कि ये माई फादर्स वाइफ की ओनली डॉटर का सन है। तो मैरी के फादर
की वाइफ मतलब मैरीज मदर हुई, उसकी ओनली डॉटर तो खुद मैरी होगी फिर, और उसका सन है ये, ठीक है, तो मैरी का सन हुआ ना। सो हाउ इज जैक रिलेटेड टू मैरी? जैक इज सन ऑफ मैरी, राइट? वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 7 and 8. These both questions are also from ESE 2021 paper. और वही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां भी एप्टीट्यूड आपके सिलेबस में होता है। एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 3:30। ये आप सभी को घर पे प्रैक्टिस रखनी है, क्लॉक के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कितना एंगल कब बनता है। सो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना अपना आंसर निकालेंगे, अपने माइंड में रखेंगे, फिर मैं सोल्व करूंगा और मेरे आंसर से मैच कराएंगे। ओके, ओके। सो वी हैव ए क्लॉक, सर्कुलर क्लॉक हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना होता है 12, यहाँ पे होता है 12, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, राइट, 7 8 9 10 11 और 12। ये हमारी क्लॉक होती है मेनली। ओके, अब इसमें ये हमारा सेंटर हुआ, एक हमारे पास होती है आवर हैंड और एक मिनट हैंड, दो हैं, और एक तीसरी सेकंड वाली मूव करती है, ठीक है। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 3:30, 3:30। तो देखो 3 बज रहे हैं ना, तो आवर हैंड वाली यहाँ 3 बजे तो यहाँ पे होगी ना आवर वाली, ठीक है, और लेकिन आगे 30 मिनट हो चुके हैं, तो 30 मिनट में आवर हैंड वाली मूव करेगी, 3 से तो आगे जाएगी ना। अब ये 60 मिनट में मूवमेंट 1 आवर का होता है, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, तो 60 मिनट अगर पूरा हो जाए तो यहां से आवर हैंड 3 से 4 पे पहुंच जाती, अगर कंप्लीट हो जाता 60 मिनट्स। बट केवल 30 मिनट हुए हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब 30 मिनट में हाफ चला होगा ये, तो यहाँ पे इस तरीके से आया होगा, इस पोजीशन पे, ये आवर हैंड हो गया हमारा, ठीक। ये टोटल एंगल हमारा कितना होता है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल होता है, तो उसका हाफ चला है, मीन्स 15 डिग्री का एंगल यहाँ पे हुआ, ये 15 डिग्री का एंगल हो गया, राइट। नाउ 30 मिनट है, तो 30 मिनट कब आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 पे, जब मिनट वाला आपका जो यहाँ पे होगा, ठीक है, मिनट हैंड यहाँ पे होगा, तभी तो 30 आएगा ना, 5 × 6 30। सो हमें आवर हैंड और मिनट हैंड में एंगल निकालना है, ये वाला, ये एंगल हमें बताना है। अब देखो अगर एक यहाँ पे हो 6 पे और एक 3 पे हो, आवर हैंड 3 पे और ये 6 पे, तो 90 डिग्री का डेफिनेटली एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, ये राइट एंगल पे होता है। बट ये 15 डिग्री आगे मूव कर चुका है आवर हैंड, सो 90 - 15 कितना हुआ, 75 डिग्री। सो एंगल कितना होगा, 75 डिग्री, सी ऑप्शन। आई होप कि सभी का आंसर यही आया होगा। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डायरेक्शन सेंस टेस्ट, राइट। ये भी एप्टीट्यूड का एक कॉमन टॉपिक है जो फ्रिक्वेंटली डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपको आना चाहिए। इसको हम कई बार रीजनिंग सेक्शन में स्टडी कर लेते हैं। सो जल्दी से 8th क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड में रखेंगे एंड मेरे आंसर से फिर उसको एक बार मैच कराएंगे। ओके, ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है और 4 डायरेक्शन मान लेते हैं हम, इधर को ईस्ट, ठीक है, ये हमने एक रेफरेंस बना लिया इस तरीके से। ये हमारा क्या होता है, ईस्ट, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब हम इसको एक XY कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह ट्रीट कर लेते हैं। इनिशियल पोजीशन हमारी ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक पर्सन है, मैन यहाँ पे ओरिजिन पे इनिशियली है। नाउ ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू ईस्ट,
ये 1 किलोमीटर ईस्ट में चलता है, एक्स एक्सिस के अलोंग चलता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 1 किलोमीटर यहाँ पे आएगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 1,0, ऐसे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। नाउ देन ही टर्न्स टू साउथ, अब वो साउथ की तरफ चलना स्टार्ट करता है एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। तो यहाँ से इसके पैरेलल में चलेगा, वाई एक्सिस के पैरेलल में निगेटिव साइड में, और कितना चल रहा है 5 किलोमीटर यहाँ पे। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो 1 ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1,-5 यहाँ पे। ये 5 का डिस्टेंस है ना नीचे की तरफ निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, राइट। ये पोजीशन हो चुकी है, वॉक्स 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट, अब वो यहाँ से ईस्ट की तरफ चलता है, ये ईस्ट डायरेक्शन इधर को है ना, यहाँ से देखेंगे तो इधर ईस्ट लगेगा। तो ईस्ट में जब वो चलता है कितना, अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, और यहाँ से वो 2 किलोमीटर चलता है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो पहले एक्स कोऑर्डिनेट 1 था, अब वो ऐसे जा रहे हैं ना अलोंग द एक्स एक्सिस, तो 2 और ऐड कर देंगे एक्स कोऑर्डिनेट में, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा ना, क्योंकि वाई इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल में मूव कर रहा है। सो 1 + 2 3,-5 ये उसकी नई पोजीशन हो जाएगी। ओके, आफ्टर ही टर्न्स टू नॉर्थ, अब वो नॉर्थ की तरफ टर्न करता है एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, यहां से वो 9 किलोमीटर नॉर्थ के अलोंग चलता है, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चलेगा 9 किलोमीटर ऐसे। तो 5 तो यही हो गया टोटल डिस्टेंस, 5 पे तो यहाँ पे आ जाएगा, 4 किलोमीटर और चलेगा आगे, राइट। तो अब उसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, स्पाइन के कोऑर्डिनेट आप देखो, एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 3, और ये टोटल 9 है, यहाँ पे 5 है तो ऊपर कितना होगा 4, 3,4, ये उसकी फाइनल पोजीशन है। नाउ दे आर आस्किंग द डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, √3² + 4² √25 मतलब 5 किलोमीटर। सो दिस सी विल बी द राइट आंसर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लेके आप इजीली प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो ऐसी। Now come to next question. Question number 9. Read this and try to solve. सभी लोग जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको अटेंड कर रहे हैं क्लास को, वो इसको सोल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे, फिर मेरे आंसर से मैच कराएंगे, राइट। Okay, so now let me explain question number 9. The population of a village is 5500, right? अब वो बोल रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ मेल्स को इंक्रीज कर दिया जाए 11% एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीजेज बाई 20%, अगर इंक्रीज किया जाए, ठीक है, मेल्स को 11% और इसको 20% से, तब पॉपुलेशन ये हो जाएगी, आगे हो जाएगी, ठीक है ना, इट बिकम्स दिस। सो पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन द विलेज इज, तो इस टाइम पे कितनी पॉपुलेशन है ये बताओ। ये तो हो जाएगा अगर इतना इतना इंक्रीमेंट किया जाए, बाद में हो जाएगा, बट राइट नाउ व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन द विलेज। सो लेट नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेज इज x। ओके, नंबर ऑफ फीमेल कितना है, x है, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मेल कितना होगा, इक्वल टू 5500 और -x। ओके, फीमेल x है तो मेल डेफिनेटली 5500 -x होगा। नाउ 20% इसको इंक्रीज करें अगर हम, किसको, नंबर ऑफ फीमेल्स को, राइट, तो 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ x कितना होगा, xy5। अगर हम xy5 का इंक्रीमेंट करते हैं, इतना नंबर ऑफ फीमेल को इंक्रीज करते हैं,
प्लस 11% ऑफ मेल्स, तो 11% ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मेल कितना ये है, सो 11% ऑफ दिस, अगर इतना इंक्रीमेंट किया जाए, सो 5500 माइनस एक्स और इसका 11%, सो इंटू 11/100, ठीक है। तो इक्वल टू कितना इंक्रीमेंट होगा नेट, फाइनल पॉपुलेशन माइनस इनिशियल पॉपुलेशन, सो दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना आएगा 830, तब ये हो जाएगा 830 का इंक्रीमेंट। भाई दोनों को बढ़ाया हमने, इसको बढ़ाया इतना परसेंट, इसको बढ़ाया इतने परसेंट, तो नेट बढ़ोतरी कितनी हुई, इंक्रीमेंट कितना हुआ, दिस माइनस दिस, सो 830। नाउ वी हैव टू फाइंड x, इसको सोल्व करके x निकालना है। 5 और 100 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 100, ओके। 5 से 20x और प्लस, नाउ दिस इज 11,000 60500 और माइनस 11x और इक्वल टू 830, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 20x माइनस 11x कितना होता है 9x, ओके 9x और प्लस 60500 इक्वल टू 83 और 000 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। सो यहां से 9x इक्वल टू कितना होगा, 9x इक्वल टू दिस माइनस दिस, राइट। सो यहां पे अलग से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, 83000 ये है ना, इसमें से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है 6500, 60 और 500, ओके। सो 0 सो इक्वल टू 22500, ओके। सो x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू 2500, अगर 9 से डिवाइड करेंगे इसको कितना आएगा 2500। सो पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन द विलेज इज 2500, सो अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जिसको भी नोट करना है नोट कर सकते हैं, और हिंट लेके अगर खुद सोल्व करना चाहते हैं सोल्व कर सकते हैं, ओके। बेटर है कि आप एक बार सॉल्यूशन देखो, हिंट लो और फिर से इसको रिकैलकुलेट करो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। Read the question and try to compute the answer. Okay, so now I am going to explain this, right? आपको फिर से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से ट्राई करो, आंसर निकालो और फिर आपको मेरे आंसर से मैच करना है, राइट। वी हैव 5 डिफरेंट इंटीजर्स A, B, C, D एंड E, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, और डिफरेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट इंटीजर्स इज 4। नाउ D इज द ग्रेटेस्ट, सो सपोज दिस इज D, सबसे बड़ा जो है वो D है, एंड A इज द लीस्ट, सो ये A हो गया हमारा और ये D हो गया, ओके, ग्रेटेस्ट और ये लीस्ट। असेंडिंग ऑर्डर ऊपर को चल रहा है ऐसे, असेंडिंग ऑर्डर। नाउ B इज ग्रेटर देन E, जो B है वो E से ग्रेटर है तो डेफिनेटली E के ऊपर आएगा, बट लेस देन C है तो C यहां पे होगा, ये हमारा ऑर्डर बनेगा, राइट। नाउ सपोज दिस इज A, स्मॉल a मान लेते हैं इसको, अब 4 का डिफरेंस चल रहा है कंसेक्यूटिव में, सो दिस विल बी A + 4, दिस विल बी A + 8, दिस विल बी A + 12 एंड दिस विल बी A + 16, ओके। 4 का गैप चल रहा है ना। नाउ देयर सम, इन सबको ऐड करके अगर हम निकालें सम कितना आएगा, 1 2 3 4 5A और प्लस 16 + 12 और 4 16, 32 और 8 40,
सो 5a प्लस 40, ओके, इनका सम ये होगा. नाउ द सम ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू e, सो दिस इज इक्वल टू e, एंड व्हाट इज e? इट इज a प्लस 4, सो इक्वल टू a प्लस 4. सो 5a माइनस a मीन्स 4a. दिस implies that 4a equal to minus 36. So clearly a is equal to what? Minus 9. Okay, so the lowest integer is minus 9 and the highest is minus 9 plus 16. Okay, कितना होगा ये? 7. So difference कितना चल रहा है इनमें? What is the positive difference between the lowest and the highest integers? So 16 का difference होगा. अब देखो यहाँ पे तो हमने ये कंप्यूटेशन किया है, ठीक है, ये, बट इसकी अगर हम ये समझे कि कोई ज़रूरत ही नहीं है ये सब करने की, हम डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं. भाई उन्होंने कहा जो ये ऑर्डर दिया हुआ है उन्होंने सारा कुछ, इसके हिसाब से अगर हम इसको a मान लेते हैं और 4 का गैप चल रहा है, ठीक है, 4 फिर 4 ऐड किया फिर 4 ऐड किया तो 16 हो गया. तो a प्लस 16 और a के बीच में कितना गैप चल रहा है? पॉजिटिव डिफरेंस पूछा है ना. What is the positive difference between the lowest and the highest integers? 16 होगा. तो without calculating this a, we can answer this simple. Okay? बिना कैलकुलेट करे भी हम डायरेक्टली बता सकते हैं 16 को. बट अगर आप कंप्यूट भी करना चाहते हो जो उन्होंने गिवन कंडीशन दी है उसके हिसाब से, तो भी आंसर आ जाएगा. जिसने भी ये क्वेश्चन फ्रेम किया होगा ना, तो उसने जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, उसकी जरूरत ही नहीं है, सीधा ही आंसर हमारा 16 आ जाएगा, जो 4 का गैप अगर लिया जा रहा है तो. ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. Question number 11. So read question number 11 and then try to answer this. Okay, so now 11, question number 11. In how many years will a sum of rupees 800 at 10% per annum compounded semi-annually become rupees this, right? So what is the formula for compound interest? We know that amount is equal to principal P into 1 plus rate of interest per unit of time, okay, upon 100, and its power is number of units n. ओके, जो n यूनिट्स है हमारे पास, एक टाइम इंटरवल हम इसमें फिक्स करते हैं, ठीक है, वो हाफ ईयर ईयरली हो सकता है या फुल कंप्लीट ईयर हो सकता है या क्वार्टरली भी हो सकता है, 3 मंथ्स 6 मंथ्स 12 मंथ्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है. उसका इंटरेस्ट वो आर होगा यहाँ पे, और ऐसी कितनी यूनिट्स बनेंगी टोटल टाइम ड्यूरेशन में, उतने इंटरवल्स की कितनी यूनिट्स बनेंगी, वो हमारा n होता है. ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का. सो सम ऑफ 800 बिकम्स दिस वन. सो 926.10 इक्वल टू P, इसको इक्वल टू को यहां पे ले आएंगे डिनोमिनेटर में, सो अपॉन 800 दिस वन, ओके, इक्वल टू 1 प्लस, नाउ कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब क्या है इसका कि 6 मंथ्स में उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्यूटेशन होता है, ठीक है, सेमी एनुअली. सो 6 मंथ्स के लिए ही हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना. यहाँ पे पर एनम के हिसाब से देखें तो 10% का रेट है, तो 6 मंथ्स के लिए 5% का रेट हो जाएगा हमारा. सो R इज इक्वल टू 5. ओके, अब ये कितने ईयर्स में हो जाएगा ये हमें बताना है. सो यहाँ पे 5/100 टू द पावर n. ओके, सो दिस इज 926
10 अपॉन 800 और 00, ये पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल टू, नाउ दिस इज 1 अपॉन 20, सो 21 अपॉन 20 टू द पावर n। अब देखो ये 20 का क्यूब है, ये जो है 20 का क्यूब होगा ना 8000, सो हो सकता है कि ये 21 का क्यूब हो, वही हमें ट्राई करना है। सो n इक्वल टू अगर हम 3 लेंगे तो ये 21 का क्यूब आ जाएगा 9261 और ये 20 का क्यूब आ जाएगा, सो n इक्वल टू 3 विल बी द आंसर। आप वेरीफाई कर सकते हो कि भाई 21 का क्यूब यही आता है कि नहीं आता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, इसको 21 से मल्टीप्लाई करके देख लो। नाइन टू 61, तो 21 का क्यूब ही है डेफिनेटली, सो n इज इक्वल टू 3, तो टोटल 3 यूनिट्स बनी। अब एक यूनिट कितने लेंथ की है, 1 यूनिट इज ऑफ 6 मंथ, बिकॉज हम कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली कंप्यूट कर रहे हैं। एक यूनिट हमारी 6 मंथ्स की है और 3 यूनिट बन रही हैं, तो कितने हो जाएंगे 3 इंटू 6, 18 मंथ्स, और 18 मंथ्स को क्या लिख सकते हैं 1 ईयर एंड हाफ ईयर, 1.5 ईयर, ओके। सो बी विल बी द राइट आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर सेमी एनुअली या क्वार्टरली कंप्यूटेशन होता है या मंथली कंप्यूटेशन होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, अकॉर्डिंगली रेट को चेंज करते हैं और टाइम को नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से कंप्यूट करते हैं। Okay, so now come to next question, question number 12. ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन लिया गया है। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है हमारे पास, दिस वन, ठीक है, इसका एक डायगोनल है। सपोज लेंथ इज l, विड्थ इज b, सो ये कितना है √41, ये 90 डिग्री का एंगल होगा रेक्टेंगल में। So clearly L square plus B square is equal to 41 using the Pythagoras theorem. Okay. Now area LB is 20, L into B is 20. So हमें L और B कंप्यूट करने हैं। या तो हम इक्वेशन को सॉल्व करके करें, या अगर हम डायरेक्टली सोच पाए ऐसा कि दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 20 हो और जिनके स्क्वायर्स का सम 41 हो, तो मेरे दिमाग में तो तुरंत आ गया कि भी 5 और 4 को देख लेते हैं। 5 इंटू 4 20 होता है ना, तो L को अगर हम 5 ले लेते हैं और B को 4 ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट तो 20 हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, और 25 प्लस 16 कितना 41 हो जाएगा। सो ये तो कॉमन सेंस ही निकल सकता है सीधा। अब LB अगर हमने कंप्यूट कर लिया, नाउ दे आर आस्किंग अबाउट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर कितना होता है P इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B, सो इक्वल टू 5 प्लस 4 9 इंटू 2 18, सो 18 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर हेयर। दिस B ऑप्शन विल बी द आंसर। Now come to the next question, question number 13. Problems on trains we have already discussed in the previous CTQs, so those who have not watched the lecture can watch that again. ट्रेन्स के ऊपर हमने डिफरेंट काइंड्स की प्रॉब्लम्स डिस्कस किया था, उनको आप वापस देख सकते हैं, ठीक है। Two trains are moving towards each other with speeds of 48 km per hour and 44 km per hour. अब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं जब ट्रेन्स, ठीक है, दोनों एक तरफ एक दूसरे की साइड मूव करती हैं टुवर्ड्स ईच अदर, तो टाइम कितना लगता है, सम ऑफ लेंथ्स, दोनों की लेंथ का सम डिवाइडेड बाय सम ऑफ देयर स्पीड्स। सो व्हाट इज द ओवरऑल स्पीड, इफेक्टिव स्पीड और सम ऑफ देयर स्पीड्स, 48 प्लस 44 इक्वल टू 92 किलोमीटर पर आवर, ये इफेक्टिव स्पीड बनेगी ट्रेन की, ठीक है। अब 92 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्या लिख सकते हैं, 92 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ओके। नाउ सम ऑफ लेंथ्स कितना हो जाएगा ट्रेन का, L इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ लेंथ्स 65 प्लस 50, 115, okay, meter. So time taken will be this sum of lengths of trains divided by the sum of speeds.
सो 115 डिवाइडेड बाई दिस 92 इंटू 5/18 है, 18 को ऊपर ले जाएंगे प्रोडक्ट में, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 23 से कैंसिल हो सकता है 4 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। सो इक्वल टू 18/4 मीन्स 9/2, सो 4.5 सेकेंड। दिस विल बी द टाइम ड्यूरेशन टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर। ओके, ट्रेन्स में सबसे मोस्ट कॉमन कंसेप्ट क्या क्या होते हैं वो आपको सारे रिवाइज करके रखने हैं। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आती हैं, क्रॉस करती है, उसमें कितना टाइम लगता है। अब अगर वो एक साथ पैरेलल एक डायरेक्शन में चलते हैं तब कितना टाइम लगता है। अगर किसी पर्सन को कोई ट्रेन पास करती है तब उसको कितना टाइम लगता है, या किसी प्लेटफॉर्म जिसकी एक लेंथ है कोई फाइनाइट, उसको क्रॉस करती है ट्रेन तब कितना टाइम लगता है। तो सबसे कॉमन फॉर्म्स हैं प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन की, इनको सबको रिवाइज करके रखना है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 14। Okay, so in this problem question number 14, this D is nothing. Okay, D जो है केवल A B C एंड R डिजिट फ्रॉम 0 to 9। ओके, D जो है ये कुछ नहीं है, इसको आप डिलीट कर सकते हो। Least number which when divided by 16, 24, 26 and 48 leaves a remainder 3 in each case is ABC, मीन्स 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, अब देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है जिसमें अगर आपसे पूछा जाता है लीस्ट नंबर when divided by these numbers leaves a remainder this, सो सिंपल कंसेप्ट होता है वहाँ पे आंसर निकालने का। सच नंबर इज LCM ऑफ गिवन नंबर्स और प्लस रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर गिवन है ना उसको LCM में ऐड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो हियर वी हैव टू कंप्यूट द LCM फर्स्ट, राइट। सो 16, 24, 26 और 48, these are the numbers we have to find the LCM of these numbers। LCM निकालने के जो भी तरीके होते हैं वो आपको क्लियर है। प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हो या डिवीजन से कर सकते हो, अलग अलग अप्रोच होती है, जो कंफर्टेबल लगता है उसको यूज करके LCM निकालना है। ठीक है, so now I am calculating the LCM। I can see here 2 is the common factor। okay, so 2 से अगर डिवाइड करें सबको हम 8 टाइम्स, 12 टाइम्स, 13 टाइम्स और 24 टाइम्स, राइट। नाउ फ्रॉम सब नंबर्स वी कैन टेक 4 एज ए कॉमन फैक्टर। सो 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 13 डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे ही रहेगा, जो नंबर डिवाइड नहीं होगा वो सेम तरीके से लिखा जाएगा, राइट। और 6 टाइम्स। नाउ 3 इज ए कॉमन फैक्टर, 2 को सेम रखेंगे, 1, 13 और 2। देन 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 13 और 1। सो व्हाट विल बी द LCM, द प्रोडक्ट ऑफ दीज ऑल नंबर्स। ओके, सो 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 13, सबका प्रोडक्ट जो आएगा वही LCM होगा। कितना प्रोडक्ट आएगा ये, 48 इंटू 13 हो जाएगा, 624, राइट। दिस इज द LCM, ये सभी से डिवाइड हो जाएगा। नाउ इफ वी ऐड 3 वी गेट 627। सो व्हेन यू विल डिवाइड दिस नंबर बाय एनी वन ऑफ दीज नंबर्स ऑलवेज रिमाइंडर विल बी 3, राइट। सो दिस इज नंबर ABC। सो नाउ वी हैव टू कंप्यूट स्क्वायर रूट ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस 1, सो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 2 plus 7 or plus 1, so equal to root how much, 16, and root 16 is equal to 4, so C will be the right answer। okay, this will be the right answer here। now come to next question number 15 from the topic percentage।
Percentage is also very important for every exam. So for HPCL it is very important to prepare percentage chapter. Okay, let us discuss the solution of this question number 15, and you can also try. I am deleting this section first. Okay, so come to question number 15. X% of y, x% of y कितना होगा? y multiplied by x upon 100. Okay, this is half of, so 1/2 of z% of y square. So what is z% of y square? It is y square into z upon 100. Okay, अब 100 से 100 को कैंसिल कर सकते हैं और y से y को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे एक y बचेगा. So now x upon y is equal to z by 2, right? X upon y is half of z, right? So now they are asking x upon y is what percent of z? ये z का कितने परसेंट है? तो अगर ये हाफ है, z का हाफ है, मीन्स 50% है. सिंपल. सो D विल बी द राइट आंसर. कोई भी नंबर अगर दूसरे का हाफ है मतलब उसका 50% है. नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 16. ओके, सो इस तरीके की क्वेश्चंस की कैलकुलेशन में आपको बस मिस्टेक नहीं करनी है. कैलकुलेशन एरर होने के चांस रहते हैं, कंसेप्ट तो नॉर्मल है. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 16. सो हियर वी हैव रिटन टू प्रॉब्लम्स, वन इज 16 and 17. So come to question number 16, exponent of 3 in 28 factorial. Okay, this is also important topic, and in any exam you may find question from this, to find the exponent of a prime number in some factorial. Okay, so क्या concept है वो मैं भी explain कर देता हूँ. आपको 3 का exponent बताना है 28 factorial में. देखो अगर 28 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो 28 फैक्टोरियल मीन्स क्या होगा? 28 इंटू 27 इंटू 26, सारे नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा 1 से 28 तक, राइट? अब उनका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो मतलब प्राइम नंबर्स की पावर्स के प्रोडक्ट के उसमें नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है, तो वहाँ पे 3 की पावर कितनी आएगी वो आपको बतानी है. क्लियर? अब इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, 28, ओके, जो भी फैक्टोरियल में नंबर है दैट डिवाइडेड बाई 3 and greatest integer value of this resultant. Okay, this indicate greatest integer function, plus 28 upon 3 square. अब इस नंबर की पावर को स्क्वायर कर दो, क्यूब करना है अगले में, इस तरीके से चलेंगे. एंड दिस इज आल्सो ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंबल, प्लस 28 अपॉन 3 क्यूब. और ये कब तक करना? जब तक डिनोमिनेटर नोमिनेटर से ज्यादा हो जाए. सो प्लस जैसे ही 28 अपॉन 3 की पावर 4 करेंगे, सो नाउ वी विल गेट द डिनोमिनेटर 81 विच इज ग्रेटर देन 28. उसके बाद स्टॉप कर देंगे अब यहाँ पे, राइट? नाउ 28 अपॉन 3 इज 9 पॉइंट समथिंग. ओके, 3 इंटू 9 कितना होता है? 27 होता है ना. सो 9 पॉइंट सम नंबर. सो 9 पॉइंट समथिंग की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होती है? 9, प्लस दिस इज 28 अपॉन 9. सो 28 अपॉन 9 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग. So greatest integer value will be 3, plus 28 by 27, 1 point something. So greatest integer value will be 1, और प्लस ये कितना हो जाएगा? 0. ये फ्रैक्शन में आएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 आ जाएगा. सो इक्वल टू 9 प्लस 3 प्लस 1 कितना हुआ? 13. सो अवर आंसर विल बी 13. एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 28 फैक्टोरियल विल बी 3. Now come to question number 17. This is from probability theory, basic concepts of probability. Now I am deleting this solution.
सो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में क्या क्वेश्चन है देखो, देर आर 6 ब्लू मार्बल्स, ओके। ब्लू मार्बल्स कितनी है हमारे पास 6, रेड मार्बल्स कितने हैं 3 और येलो मार्बल्स कितने हैं 5, राइट। एक बैग के अंदर है ये। नाउ व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए ब्लू और रेड, एक बॉल निकालनी है वो ब्लू हो या रेड हो, ठीक है, मार्बल सॉरी, ब्लू और रेड मार्बल निकालना है हमें इसमें से, ठीक है ना। ऑन द सेकेंड ड्रॉ, दूसरी बार, इफ ए ब्लू मार्बल हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर इसमें से पहले ही एक ब्लू मार्बल निकाल ली जाए फर्स्ट ड्रॉ में, ठीक है, तो सेकंड ड्रॉ में फिर जो बॉल निकलेगी, मार्बल निकलेगी सॉरी, वो क्या होगी ब्लू और रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है और ये हमें ऑलरेडी नोन है कि एक ब्लू मार्बल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए ब्लू मार्बल और रेड मार्बल ऑन द सेकंड ड्रॉ इफ ए ब्लू मार्बल हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक ब्लू मार्बल को ड्रॉ कर लिया, वापस नहीं रखा, ड्रॉ कर लिया है। सो जब उसको ड्रॉ कर लिया, ये ऑलरेडी नोन है, हमें पता है, तो अभी सेकंड ड्रॉ से पहले जब हम सोचेंगे तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितना हो जाएगा, ब्लू मार्बल कितना हो जाएगा 5, ओके। ये सेम रहेगा 3 और ये 5 रहेगा। सो वी हैव दिस नंबर ऑफ मार्बल्स फॉर द सेकंड ड्रॉ, ओके। सो टोटल कितना है हमारे पास, ये 13 है टोटल अभी, राइट। नाउ हम एक मार्बल ड्रॉ करेंगे, वो मार्बल या तो रेड हो या क्या हो ब्लू हो, तो रेड या ब्लू मतलब 5 या 3 कितना हो गया 8 और अपॉन टोटल कितना है 13। सो 8 अपॉन 13 विल बी द राइट आंसर, सिंपल डी ऑप्शन, ओके। सेकेंड ड्रॉ में जब हम ड्रॉ करेंगे तो ब्लू या रेड निकालना है, ब्लू आ जाए या रेड आ जाए, तो इन 5 में से कोई भी आ जाए या इन 3 में से कोई आ जाए, तो 8 हो गया टोटल फेवरेबल केसेस, अपॉन में टोटल केसेस कितना है हमारे पास 13। Now come to next problem, question number 18. The remainder obtained when 19 to the power 77 is divided by 7. Okay, if this number is divided by 7, what will be the remainder? So remainder को obtain करने के कुछ concepts होते हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। Now इसको सोल्व करने का क्या तरीका है वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है क्या, कि ax प्लस 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई a, इफ दिस एक्सप्रेशन, दिस नंबर, दिस क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाई दिस, देन अवर रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड इज 1। अगर इस क्वांटिटी को आप डिवाइड करते हो a से, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर कितना होगा, हमेशा 1 होगा। क्लियर है पॉइंट, ये आपको एक्सप्रेशन याद रखनी है। जैसे 91 वी हैव 91 टू द पावर 200। नाउ वी वांट टू डिवाइड दिस नंबर बाय 9, ओके। इसको 9 से डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या रिमाइंडर होगा, तो हम क्या कर सकते हैं 91 को एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, 9 इंटू 10 प्लस 1 और इसकी पावर में 200 और इसको डिवाइड किससे करना है 9 से। सो दिस कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस, सो रिमाइंडर विल बी 1, सो आंसर विल बी 1। आपको ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है। और सेकंड हमारे पास क्या बेसिक कंसेप्ट होता है उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो मैं भी अप्लाई करूंगा यहां पे। सपोज वी हैव ए प्रोडक्ट 19 इंटू 23। नाउ वी वांट टू डिवाइड दिस क्वांटिटी बाई 8, इसको 8 से डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। क्या रिमाइंडर होगा, सो 8 से 19 को डिवाइड अगर हम करें कितना आएगा, 2 टाइम्स आएगा 16 3, सो यहाँ पे 3 आएगा इंटू 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 23 को करेंगे कितना आएगा 7, ठीक है। तो 3 इंटू 7 को डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही यहाँ पे रिमाइंडर होगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर इक्वल टू ये वाला रिमाइंडर, 8 से आपने इसको डिवाइड किया क्या बना 3 इंटू इसको डिवाइड किया कितना बना
7, सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा अब उसको अगर डिवाइड करेंगे 8 से तो वो जो रिमाइंडर होगा वही हमारा आंसर होगा। ओके, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7 को 21, सो 21/8 को अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से 21 को तो कितना आएगा रिमाइंडर, 5, सो आंसर हमारा 5 होगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपने आप। अब यही कंसेप्ट यहाँ पे मैं यूज करूंगा इस प्रॉब्लम में। ओके, कैसे यूज करूंगा मैं, देखो इस कंसेप्ट को ध्यान से नोट करो सभी। नाइनटीन टू द पावर 77, दिस इज टू बी डिवाइडेड बाई व्हाट, 7। ओके, सो इक्वल टू ये 19 की पावर 77 को क्या लिख सकते हैं, 19 इंटू 19 इंटू 19 इंटू डॉट 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 19, कितनी बार, 77 टाइम्स, और अपॉन में 7। सो इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 7 से अगर 19 को डिवाइड किया जाए कितना आएगा रिमाइंडर, 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, सभी में 5 आएगा। सो 5 इंटू 5 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट, सो मीन्स 5 की पावर में कितना, 5 की पावर में 77 अपॉन 7, जो यहां पे रिमाइंडर होगा वही ये रिमाइंडर यहां पे भी आएगा। क्लियर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू इसको 5 इंटू 5 की पावर में 76 ऐसे लिख सकते हैं, और अपॉन 7, इसका रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखो, 5 इंटू 5 की पावर 76 इक्वल टू 5 इंटू 5 की पावर 76 को 5 का स्क्वायर और उसकी पावर में कितना, 38 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, और अपॉन में 7, सो इक्वल टू 5 इंटू 25 की पावर में 38 और अपॉन 7, जो यहां पे रिमाइंडर होगा वही यहां पे होगा। अब ये तो 5 को डिवाइड करने पे तो 5 रहेगा, इंटू अगर हम 25 को करते हैं कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, सारे 25 में 4 4 आएगा, तो 4 की पावर 38 और अपॉन 7, इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर सेम रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 7 की टेबल में कोई ऐसा नंबर सर्च करो जिसको यहां पे ला सकते हैं प्लस माइनस 1 करके। तो 7 की टेबल में 63 आता है ना, और 4 से हम क्या बना सकते हैं, 64, जो 63 प्लस 1 होता है। तो अवर ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट 64 एक्चुअली, राइट। नाउ इसको डिलीट कर देते हैं यहां से। अब ये क्या लिख सकते हैं, देखो 5 इंटू इसको 4 स्क्वायर और इंटू 4 की पावर में 36 और अपॉन 7 इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 36 को 4 क्यूब की होल पावर 12 और अपॉन 7, सो इक्वल टू 80 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 64, मतलब 63 प्लस 1 की पावर में 12 और अपॉन 7 इक्वल टू, अब इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, 63 प्लस 1 की पावर 12 का 1, और 80 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। 77 आता है ना, 11 7 जा 77, सो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 आएगा, 3 इंटू 1 कितना, 3, सो अवर आंसर विल बी 3, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, ये प्रैक्टिस आपको रखनी है रिमाइंडर कंप्यूटेशन की। Now come to next problem, question number 19. एटीन के बाद 19 मिस हो गया क्या अपना, ओके। 16 17 और 18 और 20, ओके 20 है सीधा, यही 19 होगा फिर। ठीक है, एक क्वेश्चन मिसिंग है, इसको देख लेते हैं एक बार। 20, ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको डिस्कस करते हैं एक बार।
मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन से डेफिनेटली क्वेश्चन आने के चांस हैं आपके एग्जाम में, तो इसको आपको रिवाइज करके रखना है, ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है चैप्टर। सो इन व्हाट रेशियो मस्ट टू काइंड्स ऑफ शुगर, वन एट 1.20 एंड अनदर इज 1.40 पर केजी। ओके, इतने सस्ते में तो शुगर कहीं मिलता नहीं है वैसे, बट क्वेश्चन के अंदर बना लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सो 1.2 पर केजी ये चीपर प्राइस है हमारा, और 1.40 पर केजी एक्सपेंसिव प्राइस है। ठीक है, 1.20 1.40 चीपर प्राइस और एक्सपेंसिव प्राइस हमने यहाँ पे रखा। नाउ दोनों को मिक्स किया हमने, और मिक्स करने के बाद एक फाइनल हमारा प्राइस बना होगा जो एक्स है सपोज, राइट, जिस पे हमें सेल करना है। इसको दोनों को मिक्स करके जो सेलिंग प्राइस बना, हमें इसको सेल करना है, वो ये प्राइस हमें बनाना है। ओके, अब ये हमारा एक तरीके का क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ये बनता है एक्चुअल में, और इसको फिर आगे आप जितना चाहे उतने रेट पे भेज दो। देखो जब आप मिक्सिंग करते हो दो अलग अलग रेट के आइटम्स की, तो उस आइटम को मिला के आप महंगे रेट पे नहीं बेच सकते, सस्ते पे नहीं बेच सकते। एक दोनों का मिक्स सा एक रेट डिसाइड होता है कि भाई ये सही रेट रहेगा। जैसे कोई मिल्कमैन है, अगर वो प्योर मिल्क देता है आपको, उसका रेट 60 रुपीज़ के हिसाब से लगाता है प्योर मिल्क, ठीक है, और एक बहुत ज़्यादा पानी है उसमें, उसको वो 20 रुपीज़ में दे देता है। आप ना ये लेंगे ना ये लेंगे, आप चाहते हैं कि मिल्क ठीक ठाक सा हो, काम चल जाए अपना, और एक्सपेंसिव भी ना हो, तो मिल्कमैन थोड़ा कम वाटर मिलाएगा और वो आपको एक रेट देगा जिससे उसको भी नुकसान नहीं होगा। तो मान लिया 40 के रेट में या 50 के रेट में आपको डिसाइड करके दे देगा। ठीक है, उससे क्या होगा, उसको कोई लॉस नहीं होगा, आपको भी लॉस नहीं होगा, आप भी सही रहेंगे कि भी दूध भी सही आ रहा है और आपका रेट भी ओके है, राइट। इसलिए मिक्सचर एंड एलिगेशन का इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में भी। नाउ इसको सेल करना है कितने रुपीस पे, 1.5 रुपीस पे सेल करना है। ये तो एक कॉस्ट प्राइस बनेगा इफेक्टिव। सेलिंग प्राइस जो हमारा बनाना है 1.5 पर केजी, और इस पे सेल करने के बाद 20% का गेन चाहिए। ओके, 20% का गेन कैसे मिलेगा, सेलिंग प्राइस 1.5 माइनस कॉस्ट प्राइस x अपॉन x, ओके, इनटू 100 और इक्वल टू कितना 20, ये 20 आ जाएगा। परसेंटेज में हमने कंप्यूट किया ना गेन, इक्वल टू 20। सो 1.5 माइनस x अपॉन x इज जस्ट इक्वल टू 20 अपॉन 100 का मतलब 1/5। सो 7.5 माइनस 5x और इक्वल टू x, यहाँ से x कंप्यूट करेंगे कितना आएगा, 7.5 इक्वल टू 6x है। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 7.5 अपॉन 6, 5/4, सो 1.25x आ जाएगा। सो इफेक्टिव प्राइस हमारा 1.25 होना चाहिए था। ठीक है, अब दोनों को मिला के अगर ये हमारा प्राइस बना मिक्सचर का, तो किस रेशियो में दोनों को मिलाना होता है वो हम कैसे निकालते हैं, दिस डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, कितना आएगा 0.15, एंड दिस डिस्टेंस इधर लिखा जाएगा 0.05। सो दिस अपॉन दिस जो रेशियो होगा आपका 3/1 का, वो हमारा आंसर होगा। 0.15 अपॉन 0.05 कितना होता है, 3/1। ठीक है, सो बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नोट कर सकते हैं सभी। और इस तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, प्रैक्टिस करके रखनी है आपको, कि जहाँ पे मिक्स करके प्राइस बनाते हैं, फिर सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है। कुछ सेलिंग प्राइस कई बार हम इसके बराबर कर देते हैं, जो इसका प्राइस है, या इसके बराबर, डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन हम एग्जाम में मिल सकते हैं। सबकी प्रैक्टिस करके रखनी है। ओके, अब ये हमने देखो 19 क्वेश्चन जो मिसिंग था उसको हमने सर्च कर लिया है, उसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। ओके, अभी हमने 20 किया था, 19 क्वेश्चन जो मिसिंग लग रहा था हमें वो है, जल्दी से सोल्व करो इसको।
Okay, so now let me explain you this problem. A wire is in the form of a circle of radius 3.5. एक सर्किल की फॉर्म में एक वायर है जिसका रेडियस r कितना है 3.5 मीटर, मतलब 7/2 मीटर ये इसका रेडियस है. ओके, सो इसका लेंथ कितना होगा वायर का? लेंथ विल बी इक्वल टू पैरामीटर ऑफ द सर्किल 2πr, 2 इंटू पाई मतलब 22/7 और इंटू 7/2. सो इक्वल टू 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 22 ये इसका लेंथ आ जाएगा. ओके, अब क्या किया इसको हमने, इसको एक रेक्टेंगल की फॉर्म में हमने अरेंज कर लिया इस तरीके से. ये रेक्टेंगल बना लिया इससे, और इसकी जो लेंथ है और विड्थ है उनका रेशियो कितना है 6/5. तो सपोज हमने लेंथ को 6x ले लिया, विड्थ को 5x ले लिया, तो इसका पैरामीटर कितना बनेगा 22x बनेगा. और वो किसके इक्वल होगा? जो लेंथ है एक्चुअल में वायर की 22x इक्वल टू 22, सो x इक्वल टू 1 आ जाएगा. सो लेंथ 6 हो गई और ये 5 हो गया. ओके, नाउ बाई व्हाट परसेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेस देन एरिया ऑफ सर्किल. अब देखो यहां पे कितना एरिया था और यहां पे अभी रेक्टेंगल में कितना एरिया बनेगा वो डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, पेरीमीटर आपकी सेम है, ये लेंथ जितनी है उतनी बनेगी यहाँ पे. सो पहले हम कंप्यूट करेंगे एरिया ऑफ सर्किल कितना आएगा. एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है πr². सो 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर करेंगे, सो कितना आएगा 49/4. ओके, इक्वल टू 7 से 7 जाएगा यहाँ पे और 2 से जाएगा ये और ये 11, तो 77/2 ये हमारा एरिया ऑफ द सर्किल आ जाएगा इनिशियल वाला. ठीक है, अब अगर इसको रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो एरिया कितना बनेगा, इसकी लेंथ 6 है और विड्थ 5 है, तो एरिया कितना हुआ 30. न्यू एरिया 30 हुआ और क्लियरली दिस 30 इज लेस देन दिस, ये इससे कम हो गया. नाउ बाय व्हाट परसेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेस देन, ये 30 इससे कितने परसेंट कम है ये आपको बताना है. ठीक है, 30 जो है इससे कितने परसेंट कम है ये आपको बताना है. ओके, तो कैसे कंप्यूट करेंगे हम, बाय व्हाट परसेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेस देन एरिया ऑफ सर्किल. सो आंसर विल बी दिस 77/2 माइनस 30. ये तो डिफरेंस हो गया और किसके रेस्पेक्ट में, एरिया के रेस्पेक्ट में सर्किल के. सो 77/2 और इंटू 100 ये हमारा आंसर आना चाहिए. ओके, सो इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 77 माइनस 60, तो 17 अपॉन में 77 और इंटू 100. अब 77 से आपको 1700 को डिवाइड करना है, ये आपको देखना है कितने टाइम्स जाएगा. 2 टाइम्स लेंगे अगर हम पहले यहाँ पे 154 16 और यहाँ पे 0 ले लिया, फिर से 2 6.0 फिर 0 लेंगे 0 आ जाएगा. सो 22 पॉइंट समथिंग. सो ए विल बी द राइट आंसर. ओके, बाय व्हाट परसेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेस देन एरिया ऑफ सर्किल. सो डिफरेंस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्किल और इंटू 100, दैट विल बी द राइट आंसर. सो ए ऑप्शन. Okay students, so these were 20 questions. I hope that you enjoyed these questions and all such questions will be helpful for you in your exam. Okay, now I am ending this session and in next class we will discuss some more questions. All the best.